गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति दीक्षित एंड आज मैं आपको मेटल और नॉन मेटल 10th केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल का रिवीजन कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें मेटल और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हम ये बता सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन गिवन एलिमेंट हमारा या दिए हुए सब्सटेंस में की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल या नॉन मेटल में से किसको बिलोंग कर रही हैं। तो मेटल्स में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Metals are malleable and ductile, form positive ions by losing electrons, known as electropositive element because they can form positive ions by losing electrons. Most abundant metal is aluminum, whereas non-metal do not conduct heat and electricity. Exception is diamond and graphite, neither malleable nor ductile. 10 non-metals are solid, 1 non-metal bromine is liquid, whereas 11 non-metals are gas. They form negative ions by gaining electrons, so they are known as electronegative elements because they can form negative ions by gaining electrons. Most abundant metal is oxygen. Next, when we talk about the physical properties of metal and non-metal, we can compare the properties of metals and non-metals. So the first point for the metal is metals are malleable and ductile, can be hammered into thin sheet and drawn into thin wires, whereas non-metals are brittle in nature, neither malleable nor ductile. Metals are good conductor of heat and electricity, whereas non-metals are bad conductor of heat and electricity except diamond and graphite. Metals are lustrous and can be polished. Non-metals are non-lustrous and cannot be polished except iodine. Metals are solid at room temperature except mercury. Mercury is one metal which is liquid at room temperature, whereas non-metals may be solid, liquid and gas at room temperature. Metals are strong and tough, whereas non-metals are not strong or tough. These are some physical properties of metals and non-metals. Then we come on the next topic, chemical properties of metal. First of all, metal can react with oxygen. When metal react with oxygen, it forms metal oxide. These metal oxides are basic in nature, so we can say that metal oxides are basic oxide. The vigor of reaction with oxygen to form metal oxide depends on the chemical reactivity of metal. Those metals which are most reactive and placed in the top of the reactivity series of metal, they react with oxygen easily and forms basic oxide, whereas some metals which are placed in the middle in the reactivity series or lowest least in the reactivity series does not easily react with oxygen, so they form basic oxides, but basic oxides are not water soluble much. So 4Na plus O2, first of all we take sodium and potassium. Sodium and potassium easily vigorously react with oxygen and form sodium oxide or potassium oxide, which is basic oxide in nature. One question from this topic comes, sodium and lithium, sodium, potassium, lithium kept immersed in kerosene oil. Why? So sodium, lithium and potassium react vigorously with oxygen. They can catch fire, so they are stored under kerosene oil to prevent their reaction with oxygen, moisture and CO2 of air. सोडियम पोटेशियम लिथियम को ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये तीनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एयर की CO2 से रिएक्शन करके एक्सीडेंटल बर्निंग का कॉज हो सकते हैं, इसलिए इनको हम प्रिवेंट करके रखते हैं केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स आर एल्कलीज. ये एल्कलीज हैं. एल्कलीज वो बेसिक ऑक्साइड्स आते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर. दे रिएक्ट विथ वाटर कम्प्लीटली एंड फॉर्म एल्कली. सो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स आर alkalis. It means water soluble bases. Magnesium, another metal is magnesium. Magnesium react with oxygen, but magnesium placed in the middle of reactivity series, so it does not easily react with oxygen. Then when we react with magnesium with oxygen in the presence of air, in the presence of heat, it forms magnesium oxide
ash of magnesium oxide, which is also basic in nature. Magnesium oxide, when dissolved in water, it forms magnesium hydroxide, which is also a base. But magnesium hydroxide is partially soluble. Magnesium oxide is partially soluble in water. Aluminium and zinc react with oxygen. They form aluminium oxide and zinc oxide. This aluminium oxide and zinc oxide is amphoteric oxide. What are amphoteric oxides? Those metal oxide which shows acidic as well as basic behavior is called amphoteric oxide. It means aluminium oxide और जिंक ऑक्साइड इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि ये एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं. इट मीन्स वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दी तो ये बनेगा AlCl3 और वाटर. जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराई तो इसने सॉल्ट और वाटर बनाया ZnCl2 प्लस वाटर. अब यहाँ पर HCl के साथ जब ये रिएक्शन कर रहे हैं Al2O3 और जिंक ऑक्साइड तो ये बेसिक ऑक्साइड हैं. और जब ये बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे. ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन. Al2O3 प्लस NaOH फॉर्म्स 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर. और जिंक ऑक्साइड जब NaOH से रिएक्शन करेगा इट फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O. Fe रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स Fe3O4 आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड. एंड कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. तो दिस रिएक्शन follows the metal when metal react with oxygen. Next reaction is when metal react with water. मेटल रिएक्ट विथ वाटर. तो सम मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो नॉर्मल वाटर से या कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं. मिडिल वाले जो मिडिल सीरीज़ में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं और लीस्ट रिएक्टिविटी वाले वो स्टीम से रिएक्शन करते हैं. इट मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन हमें 3 टर्म्स में दिखानी है. तो मेटल जब वाटर कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. जबकि मेटल स्टीम से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है. इस फॉर्मूले को हमें लर्न करना पड़ता है. इसके बाद हम यहाँ पर अपनी रिएक्शंस को देखते हैं मेटल के साथ. पोटेशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर क्योंकि पोटेशियम और सोडियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल है. ये वाटर में डालते ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. हाइड्रोजन गैस हिसिंग साउंड से निकलेगी और हीट प्रोड्यूस होती है. कैल्शियम और मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कैल्शियम की कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं. मैग्नीशियम हॉट वाटर या स्टीम के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है. तो अगर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और स्टीम के साथ करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं. जब ये रिएक्शंस को हम अलग अलग बीकर में ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि आफ्टर रिएक्शन सम फ्लेक्स ऑफ कैल्शियम और सम फ्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. वाई द हीट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इज़ लेस. इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है. तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लेक्स जैसे ही बबल्स हाइड्रोजन के बनकर ऊपर की सरफेस पर जाते हैं ये बबल्स अपने साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लेक्स को भी स्टिक करके ऊपर तक ले आते हैं. जब रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो बबल्स सेटल डाउन होते हैं और उसके बाद ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो फ्लेक्स होते हैं वो ऊपर आपको फ्लोट करते दिखाई देंगे. द हीट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इज लेस. द पीस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक टू इट्स सरफेस. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ स्टीम इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. जिंक रिएक्ट्स विथ स्टीम फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस. Iron react with steam forms iron Fe3O4 plus hydrogen gas. Metals like lead, copper, Ag, Au do not react with water. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इनमें ये सारे वाटर की किसी भी फॉर्म से रिएक्शन नहीं करते हैं.
because they do not displace hydrogen from water and also placed after hydrogen in reactivity series of metals, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे प्लेस होते हैं और नीचे वाले मेटल्स कभी भी अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड्स में आपके HCl आप ले सकते हैं, आप H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। वैसे भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट बनते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है, सल्फेट सॉल्ट बनते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, HNO3 के साथ ईजिली रिएक्शन नहीं होती है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम HCl से रिएक्शन करते हैं, NaCl, MgCl2, AlCl3 बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एल्युमिनियम फर्स्ट रिएक्ट स्लोली। जब एल्युमिनियम HCl से रिएक्शन करती है तो एल्युमिनियम स्लोली रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि एल्युमिनियम के पीस पर ऑक्साइड की लेयर होती है। पहले वो लेयर धीरे धीरे HCl में जाकर रिमूव होती है और इसके बाद रेडली रिएक्शन करता है एल्युमिनियम HCl से। तो हाउ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन कैसे रिमूव करता है मेटल। दोज मेटल विच लूजेज इलेक्ट्रॉन मोर इजली देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ऑल द मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जितनी जल्दी निकलती है नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीजन देकर वाटर में चेंज कर देती है। जब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देती है हाइड्रोजन को, वाटर बना देती है, तो नाइट्रिक एसिड खुद भी रिड्यूस होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देती है। इस तरीके से मेटल हमारा अनरिएक्टिव रहता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। इसी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को अगर हम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में चेंज कर दें और उसके बाद हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम या मैंगनीज मेटल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इतनी एबिलिटी नहीं शो करता कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना सकें। तो Mg+2HNO3 फॉर्म्स MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 और Mn के साथ करेगा तो MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। CuSO4 plus Zn forms ZnSO4 plus Cu because Cu is less reactive than Zn, so Zn displaces Cu from its salt solution. Next, reaction with chlorine. Metal reacts with chlorine gas form metal chloride, which is also called ionic chloride. These metal chloride, usually solid, conduct electricity in solution. Electrolytes high melting point, boiling point and non-volatile in nature. Na plus Cl2 forms 2NaCl. Reaction of metal with hydrogen. Only few reactive metals like Na, K, Ca, Mg react with hydrogen to form metal hydride. Na plus H2 forms 2NaH. It is sodium hydride. Next, एक्वारेजिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स लाइक एक्वारेजिया क्या है। इट इज़ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड 3 part ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर बनाते हैं, जब भी हम इसका यूज़ करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर बनाते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये अपने अपने आयंस में प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। इट इज़ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम। और नेक्स्ट टॉपिक आज के सेशन का आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल्स का अरेंजमेंट वर्टिकल कॉलम में उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ पर जब हम सेट करते हैं एलिमेंट्स को, मेटल्स को, तो उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है, क्योंकि like metals हाइड्रोजन also loses electron and form positive ions।
तो हाइड्रोजन मेटल्स की तरह पॉजिटिव आयन भी दे सकता है और नेगेटिव भी प्रोवाइड कराता है। तो ये आज आपने इस सेशन में पढ़ा है मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। सो फॉर दिस सेशन you have to learn all the revised topics and practice all the chemical reactions of metals. Thank you.